सर प्लीज रिकॉर्ड द क्लास। हाँ मैंने स्टार्ट की। रजिया जीशान कह रही है नो सर। रजिया क्या मसला है, आपको आवाज नहीं आ रही कि दिखाई नहीं दे रहा? चलो जी, ये अभी रिकॉर्डिंग इसकी शुरू हो गई है। So we are going to start now. The topic was 7.3 from Libab book, chapter 7. We were discussing eigenfunction of harmonic oscillator, Hamiltonian. So what we do, we have to use all the term previously we discussed. We write the operator in term of the non-dimensional displacement zeta. So zeta square was equal to beta square into x square, where the value of beta square is m omega naught divided by h cut into x square. So इसी तरह we are also taking the values of a digger in term of x and p in a momentum and displacement. So position, or we can say. So we are taking those values of a digger and a and putting these values, the values of in term of zeta, and finding the value of a in term of zeta, and then finding the value of a digger in term of zeta, which has been done here in calculations, and it is easy, not difficult. What you have to do, you have to put the value of momentum operator in term of h cut into partial by partial x, along with the iota. So here iota is also present, so that's why h cut by iota into partial by partial x is the operator value of momentum, and iota iota cancels, and you are only left with the partial by partial x into h cut, where m omega naught is already there. So simplifying it and putting the value of zeta, you can get a in term of zeta. Similarly, you can get a digger in term of zeta. Now we are taking back to the Schrodinger wave equation and putting the values from above. You will get 2a digger into a plus 1 minus 2e divided by cut omega naught into pi equal to 0. General derivation of harmonic oscillator. Simplifying now this equation by putting the values of a digger a in term of zeta, you will get a wave equation in term of zeta and pi. And the ground state wave function pi naught for the simple harmonic oscillator is, that is, when you apply a digger into pi naught, this gives you 0. If you remember, we said that when we apply these functions, this has to enhance or it has to decrease the value. So by decreasing, when we apply a operator is actually the annihilation operator, so it decreases the values. And you know that if you have pi of n and you apply a operator on that wave function, you will get pi of n minus 1. And then if you apply a operator on pi of n minus 1, you will get pi of n minus 2 and so on. But we know that n minus 1 and n minus 2 etc are minus 1 minus 2 and so on. So that's why we put 0 values for all of them, and they are not possible. Okay, so this has the solution now. What we do, we are using this value of pi naught, and we get equivalently zeta plus partial by partial zeta into pi naught equal to 0. Because a operator is equivalent to this value, this has the solution now. So the solution in the form of pi naught, and the value of pi naught will be a naught into e power minus zeta square by 2, which is the wave function for this equation now. And the normalization of this wave function can be done as you have done previously to find the value of a naught. So what we do, we put the values psi into psi star
into d psi. So putting the values up, pi naught, this value, the value that is a naught into e power minus zeta square by 2, and then again this value. So we will get this value, and solving this integral, we are getting pi under the root. Rearranging the values, the value of a naught is pi power minus 1 by 4. Putting that value in term of a naught, you will get the solution of the equation, the complete solution, that is the normalized term. In terms of the dimensional displacement, now what we do, we are going back internet law. Mahama Purno. Biasarum telio 2 घंटे no. Na uzdari biala. ओके सो मैं तो समझ रहा था कि यहाँ बिजली चली गई तो शायद इंटरनेट की डिस्कनेक्टिविटी आ चुकी होगी, लेकिन इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है. सो इट्स मीन दैट वी आर हेयर और हमारी क्लास जा रही है. रजिया कह रही कि स्क्रीन शेयर नहीं है. स्क्रीन तो मैंने शेयर किया हुआ है, ये प्रेजेंटिंग मुझे आ रहा है, लेकिन शायद आपके इंटरनेट का कोई इशू होगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयरिंग आ रही है. तो अगर बाकी को आ रही है सो इट्स मीन कि आपके तरफ पे इंटरनेट का मसला है. बाकी स्टूडेंट के साथ मेरी स्क्रीन शेयर है. अगर और किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकते हैं. सो जो वैल्यू मेरे पास आ गई अब उसकी पाई नॉट की इन टर्म ऑफ जीटा, अब ये वापस हमने लेके जाना है इन टर्म ऑफ एक्स. यानी हम क्या करते हैं, इसको वापस लेके जाते हैं ताकि हमारे पास जो पाई नॉट है वो इन टर्म ऑफ एक्स आ जाए. सो जीटा और एक्स का जो रिलेशन है हम वो पुट कर लेते हैं, and then what we do, we simplify it, that is we get b naught into e power minus zeta square by 2, that is b naught into e power minus beta x whole square divided by 2. So this is now not simplifying this and then normalizing the value of b naught. What we do, we get the value of b naught is equal to beta divided by under the root pi power 1 by 2. Putting that value, you will get this. The ground state pi naught is purely exponentially decaying wave function. You can see it has no oscillatory component. You can see here from the value that this value contains beta square divided by pi whole power 1 by 4 into e power minus beta x whole square divided by 2. So if you look at the value, and it has purely exponentially decaying wave function because there is a negative sign here, and e power minus negative mean that it is exponentially decaying wave function, and it has no oscillatory component, no oscillatory component for it. यानी इसके लिए कोई oscillatory component नहीं है. और अगर आप लोगों को याद हो, सो हमने पिछले क्लास में ये चीज डिस्कस की थी, जो हमारा ग्राफ था उसके लिए, ये दिस वन. यहाँ पे हमने थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ी थी. दिस शोज दैट the character of a function changes from oscillatory for x square is greater than x naught square to decaying for x square is greater than x naught. It's mean कि जो टर्निंग पॉइंट है हमारा x naught और माइनस x naught, इसके बाद जो फंक्शन जा रहा है ना ये आगे इसी तरह लेफ्ट साइड पे और इसी तरह ये, तो ये सिर्फ डिकेइंग है, ये ऑसिलेटरी नहीं है. इसकी ऑसिलेशन फिर खत्म हो जाती है. जबकि माइनस x naught से x naught के दरमियान इसकी बिहेवियर अगर आप लोग देख ले तो ये ऑसिलेटरी है, लेकिन उसके बाद जो है ये आगे जब जाता है ये सिर्फ प्योरली डिकेइंग वेव फंक्शन बन जाता है. सो जो हमने वेव फंक्शन के लिए रिजल्ट हासिल किया लास्ट में, वो भी हमें यही शो कर रहा है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्लासिकली. तो व्हाट वी आर गेटिंग इट, हमने ऑपरेटर्स मेथड से वेव फंक्शन हासिल किया, वो भी हमारे पास वही आ रहा है, and that is purely exponentially decaying wave function at the value of x naught. यानी जब आप x naught की जो लिमिटिंग वैल्यू है उसके बाद जाते हैं, यानी x when x is greater than x naught you will have this value,
एंड व्हेन यू पुट x इक्वल आर लेस देन x नॉट, देन जो ये वैल्यू होगा, ये फंक्शन होगा, ये ऑसिलेटरी होगा और ये बाकायदा आपको ऑसिलेशन शो करेगा। सो यहाँ पे जो हमारा एक मेथड से हमने जो हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा और उसके लिए जो हमने एनर्जी आइगन वैल्यू मालूम की और फिर वो फंक्शन मालूम किया, वो आपके सामने है। एंड यू डिड दैट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, we have to start the harmonic oscillator again, but this time we are using differential method। यानी अब हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं। अक्सर पेपर्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर पे जब क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी तरह होते हैं। अगर आप पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस देख लें तो वो बाकायदा आपसे मांगते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी, फाइंड द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, और अक्सर वो वैल्यू दे देते हैं और आपको कहते हैं कि शो दैट दिस इज द वैल्यू बाय अलजेब्रिक मेथड या यूजिंग द ऑपरेटर्स। वो ऑपरेटर जो हमने इस्तेमाल किए वो ऑपरेटर मेथड के लिए होते हैं, या यानी वो क्वेश्चन आपको डिटरमिन कर देता है कि आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है और आपने क्या वैल्यू मालूम करनी है। तो थोड़े से इसके साथ साथ आप पेपर्स जो है वो चेक कर ले, उसमें जिस जिस नेचर के क्वेश्चन आ चुके हैं उन उन क्वेश्चंस को जरा देख ले कि आपको उनकी समझ आती है कि नहीं। अक्सर स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कर लेता है कि उससे पूछा एक मेथड होता है और वो दूसरे मेथड से कर लेता है, जिसकी वजह से बाज एग्जामिनर उसको कंसिडर ही नहीं करते और आपको उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलता। स्टूडेंट इधर कहता है कि मैंने तो सारा पेपर अटेम्प्ट किया है, लेकिन जब बाद में रिजल्ट आता है तो उसके मार्क्स कम होते हैं। एंड दैट इज द रीजन यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि उस क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं आपसे और आपने उसी तरीके से उसको आंसर करना है। अगर आप दूसरा तरीका अपनाएंगे तो यू विल हैव द प्रॉब्लम। इस वजह से कोशिश करें कि आप इसको अंडरस्टैंड कर ले, उन्हीं क्वेश्चंस को पहले देख लें। एंड इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम नाउ, जब आप वो क्वेश्चन देख लें, उस पर प्रॉब्लम्स देख लें, फिर भी अगर आपको उसमें कोई मसला हो कि सर ये क्वेश्चन अब मैं क्या करूंगा, इसमें क्या मसला आएगा, सो जो कल हमारा क्लास होगा इसी टाइम पे, अच्छा हमारा रेगुलर इसी टाइम पे क्लास होगा, सिर्फ फ्राइडे को हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टाइम चेंज कर ले, बाकी 12 to 2 आपका रेगुलर क्लास होगा। हमने इस कोर्स को अभी जो टॉपिक रिमेनिंग है उसको खत्म करना है। सो जरूरी है कि आप लोग इसको देख लें कि क्वेश्चंस इस पे किस तरह आते हैं, ठीक है। सो नाउ अगेन वी आर स्टार्टिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय डिफरेंशियल मेथड। सो फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर the potential is given by 1 by 2 kx square, and that is the potential energy. And the Schrodinger wave equation can be written in the form of d square psi by dx square plus 2m divided by cut square n2 e minus half kx square psi equal to 0। ये वही Schrodinger equation है। यहाँ इसकी यानी जिस तरह आप जनरल इक्वेशन में e माइनस वी लिखते हैं, यहाँ पे v की जगह पे अपनी वैल्यू जो है आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर की डाल दी है। नाउ व्हाट वी डू, हम इसमें थोड़ा सा सपोजिशन कर लेते हैं ताकि ये इक्वेशन हम थोड़ा सा आसान कर ले। व्हाट इज आवर सपोजिशन, वी टेक another term y and equate it to m omega divided by cut whole square square root into x, or y equal to alpha x, alpha is equal to m omega divided by h cut under the root, यानी अल्फा स्क्वायर जो होगा वो m ओमेगा डिवाइड बाय h कट के बराबर होगा। सो जब आपकी y वैल्यू इसके बराबर है तो x की वैल्यू जो है वो h कट बाय m ओमेगा y के बराबर होगी। इसी तरह ओमेगा जो है स्क्वायर रूट के बाई एम के बराबर है, ऑलरेडी आप लोग इसको जानते हैं। सो अगर हम जब ये सपोजिशन इसमें कर ले और इसी तरह हम क्या करते हैं, साई ऑफ एक्स जो हमने यहाँ पे लिया है इक्वेशन 1 में, वी टेक पाई ऑफ वाई, नाउ वी आर चेंजिंग इट फ्रॉम द वेरिएबल एक्स टू वाई। जब हम इसको चेंज कर लेते हैं, हमें ये डिफरेंशियल फॉर्म में भी रिक्वायर्ड है। सो व्हाट विल बी अ डिफरेंशियल फॉर्म, यानी डी साई बाई डी एक्स जो है वो dy by d psi by dy के कैसे बराबर होगा। सो व्हाट वी डू, वी टेक दैट d psi by dy into dy by dx, यानी d psi by dx अपनी जगह पे है और dy जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ पे d psi by dy अपनी जगह पे आ गया और dy by dx चूंकि y की वैल्यू यहाँ पे आपने सपोज की थी तो इसकी डिफरेंशियल आप ले ले dy by dx की, तो आपके पास जो है वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ओनली डिवाइड बाय कट स्क्वायर रूट।
तो यही वैल्यू आपने इसमें वापस पुट करनी है। सो इसकी फिर आप दोबारा डिफरेंशियल ले लें, स्क्वायर हमें चाहिए क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन में ये डबल है, डबल डिफरेंशियल है। सो डी स्क्वायर साई बाई डी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, अगेन अप्लाइंग ऑन इट एंड देन अगेन you will get d square psi by dy square into m omega divided by h cut, क्योंकि ये जो डबल आ जाएगा m omega by h cut in square root into m omega by h cut square root. सो स्क्वायर रूट 1/2 जब पावर एड अप होंगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा एंड यू विल गेट m omega divided by h cut. Or we can write now d square psi by dx square equal to m omega divided by h cut into d square psi by dy square. Now this is transformed, यानी this is the value of d square psi by dx square. Putting all these values, यानी now हम इन तमाम वैल्यूज को उठाकर उस इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं ताकि हमारा वो जो इक्वेशन 1 है वो y के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए. So putting all the values in place of x and in place of d square psi by dx square and simplifying the equation, this is simple mathematics, just you can do it, क्योंकि आपको मैंने ये करके दिया है तो कोई इसमें मसला नहीं होगा. And then you will get this equation d square psi by dy square plus n to 2e h cut divided by h cut omega minus y square n to psi equal to 0. Or you can write in place of psi as pi y. So the final equation will be d square pi divided by dy square. Pi is in term of y, so that's y. And here is epsilon minus y square into pi equal to 0. Epsilon is equal to 2e divided by h cut omega. And this is a dimensional less eigen value because you can see h cut omega into power e energy. नीचे भी energy है और ऊपर भी energy है. तो दोनों जो आपको जो रेशो से मिलेगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी एप्सिलॉन होगी. अब जो इक्वेशन 2 है अगर इसको आप देखें सो इसका जो हमारे पास इसके एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशंस है. सो फर्स्ट एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन इसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लार्ज वैल्यू ऑफ y के लिए जब हमारे पास y की वैल्यू लार्ज होंगी यानी व्हेन y टेंड्स टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी then y square into pi is far greater than epsilon pi, क्योंकि वो बहुत स्मॉल वैल्यूज है एप्सिलॉन पाई के, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इस वजह से उसके जो वैल्यूज आएंगे वो बहुत कम होंगे. सब हम उसको इग्नोर कर सकते हैं और जब हम उसको इग्नोर कर लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है फिर जो होगा simple d square pi over dy square minus y square pi equal to 0. यानी we will have now this equation because जो term था epsilon pi का वो हमने neglect कर दिया. और another term अब इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दे, so you will get this equation now. The solution जो इस इक्वेशन का होगा, या डबल डिफरेंशियल है, you know that कि इसकी सॉल्यूशन फॉर्म क्या होगी, that is y पावर n into e पावर minus y square by 2. ये नेगेटिव y के लिए है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है जब आप देख लेते हैं ये स्क्वायर रूट स्क्वायर है इसका, तो दोनों सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है, वन विद e पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एंड वन विद e पावर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2. सो वी नेग्लेक्ट द डाइवर्जेंट सॉल्यूशन एंड ओनली लेफ्ट विद द कन्वर्जेंट सॉल्यूशन. ये देखे ये जो प्लस वाई स्क्वायर है एक्सपोनेंशियल, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डाइवर्जेंट है और हमने ऑलरेडी हम आगे भी देख चुके हैं और ये हमें पता भी है कि जो हमारे पास जो डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस होंगे इसके वो पॉसिबल ही नहीं होते, इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं. तो जो कन्वर्जेंट सॉल्यूशन है वी आर लेफ्ट ओनली विद दैट इज y पावर n into e पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2. अब इसका जो ट्राइवल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो हो जाएगा पाई इंटू ई पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू एच वाई, यानी ये हमने उसी फॉर्म में लिख दिया जो हम पहले लिख चुके. एच वाई इज अ पावर सीरीज which is impact the Hermite polynomials. यानी अब ये जो सॉल्यूशन के फॉर्म में हमने इसको लिखा तो इसमें एच वाई आ गया और एच वाई आपने एमएमपी में पढ़ा होगा जो हर्मिट पॉलिनोमियल्स है ये उसी फॉर्म में चला गया है, तो इस वजह से ये उसी सीरीज का पॉलिनोमियल है. नाउ कमिंग बैक, एज इक्वेशन 2 is the trivial solution, equation 3 is the trivial solution of equation 2, so it should satisfy equation 2. यानी अब हम देख लेते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है ये उस इक्वेशन को
वेरीफाई करता है कि नहीं, ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सो हमने उसमें वैल्यूज वही वही वैल्यूज हमने पुट करनी है उसके लिए। तो उसी सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें जो डिफरेंशियल चाहिए, हम क्या करते हैं, इसी सॉल्यूशन को यानी इस पाई वैल्यू को हम जो ये इक्वेशन 3 है इसकी डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी डी पाई बाई डी वाई लेंगे और फिर इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे डी स्क्वायर पाई बाई डी वाई स्क्वायर के साथ। तो उसी को देखते हुए जब हमने सिंगल सॉल्यूशन लिया, वी गॉट डी एच बाई डी वाई माइनस एच वाई इंटू ई पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। एंड जब हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो हमने जो डी स्क्वायर पाई और डी वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू ये हासिल की। अब यही वैल्यूज ये दोनों आप उठाकर इसी में डाल दे, जो हमारा जो इक्वेशन था मेन यानी इक्वेशन 2, उसी में इसको हम पुट कर लेते हैं। जब हमने ये पुट किया और हमने इसको इन तमाम टर्म्स को आप ओपन कर दे और फिर इन तमाम टर्म्स को आप सिंप्लीफाई कर दे, जो इसमें कटिंग होगी वो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डबल डिफरेंशियल होगा डी स्क्वायर एच कट का, वो हम एच डबल प्राइम लिख लेते हैं और जो सिंगल होगा वो एच प्राइम से। तो जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा इक्वेशन 4, दैट इज एच डबल प्राइम माइनस 2y एच प्राइम प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 इंटू एच वाई 1, यानी ये हमारे पास जो है सॉरी y यानी एच जो है वो इन टर्म ऑफ y है। सो एच डबल प्राइम माइनस 2y एच प्राइम प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 इंटू एच इक्वल टू 0। दिस इज नाउ equation 4, and this is, you already know this equation if you remember from your previous studies in MMP, that this is the Hermite differential equation। और इस Hermite differential equation का जो solution है वो आप कर सकते हैं। So thus we have converted equation 2 to Hermite differential equation। जो हमारा equation 2 था उसको हमने Hermite में convert किया और इसी का जो हमारे पास मेथड थे सॉल्व करने के लिए, उसके दो मेथड थे। एक हमारे पास सीरीज सॉल्यूशन होती है जो कि हम हर इक्वेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राबिनिस मेथड या सीरीज सॉल्यूशन आप लोगों ने एमएमपी में पढ़ा था। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है विद रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट वाइज, आप कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं उसमें और आप मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ पॉलिनोमियल्स के लिए फिर हमारे पास डिफरेंट टूल्स है, यानी हमने मुख्तलिफ टूल्स, जिस तरह आपके पास फंक्शंस होते हैं, स्पेशल फंक्शंस होते हैं, एक दफा आप सॉल्व कर लेते हैं एंड देन यू गेट स्पेशल टूल्स और आप डायरेक्टली उसकी वजह से सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यानी आप जब एक दफा एक सॉल्यूशन कर लेते हैं जनरली और फिर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए डायरेक्टली। सो ये जो सीरीज मेथड से इसकी सॉल्यूशन है हर्मिट पॉलिनोमियल इक्वेशन की, वो ये है कि h जो बराबर है समेशन वेयर k स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a k into y k plus alpha। सो here the value of k, यानी ये सीरीज सॉल्यूशन है, तो a1 y alpha plus a2 y alpha plus 2 and so on, this will be a series solution of equation 4। here k is the running index and alpha is the pex index। alpha की वैल्यू जो है वो pex है, जबकि k आपका 1 2 3 4 up to so on 0 से स्टार्ट है। सो अब हमने इसको यानी इसी को लेकर इसकी डिफरेंशियल ले ली h प्राइम, यानी इसको आपने डिफरेंशिएट किया एंड देन अगेन h डबल प्राइम और इसी को आपने डिफरेंशिएट किया, फिर यही वैल्यूज आप उठाकर इसमें पुट कर ले। ये वही फ्राबिनिस मेथड के तरीके से आप यही हासिल कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं मुख्तलिफ सॉल्यूशन, जब k इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, सो वी विल हैव दिस इक्वेशन अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 ए नॉट इंटू वाई पावर अल्फा माइनस 2 minus 2 a naught y power alpha minus 1 plus and epsilon minus 1 into a naught y power alpha equal to 0। now equate the coefficient of lowest power, यानी हम दोनों साइड पे अब क्या करेंगे, क्योंकि हम कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी हम a naught a1 a2 a3 ये मालूम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो लावेस्ट पावर्स है कोएफिशिएंट के y के साथ, तो वो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यानी जो हमारे पास पहला है अल्फा माइनस 2 पाई वाई पावर अल्फा माइनस 2 का, तो अब दूसरे साइड पे तो उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो इस वजह से अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इंटू ए नॉट विल बी इक्वल टू 0 एंड वी टर्म इट एज कैपिटल ए। इन इक्वेशन नंबर इसका है कैपिटल ए। इन दिस इक्वेशन नाउ अगर आप इसको देख ले, आइदर अल्फा इज 0 और अल्फा माइनस 1 इज 0। अगर इसमें ये दोनों, क्योंकि ए नॉट तो 0 हो ही नहीं सकता,
तो या तो अल्फा 0 है या अल्फा 1, यानी अगर हम अल्फा की कीमत 0 या 1 पुट कर ले तो इक्वेशन ए सेटिस्फाई होगा। दस द रूट ऑफ अल्फा आर 0 एंड 1, तो ये हमारे पास इसके रूट्स निकल आए। देन इक्वेशन ए इज कॉल्ड एज द indicial equation because there are two indexes used in developing this equation. So each root gives one solution. अब दो रूट्स आ गए तो दोनों का दो सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल है। सो व्हाट वी डू, वी कंसीडर अल्फा इक्वल टू 0, और यही हम उठाकर वापस उसी इक्वेशन से एक्स में पुट कर लेते हैं। जब अल्फा इक्वल टू 0 आप पुट कर लेते हैं, सो जो के पावर्स थे वाई पावर के माइनस अल्फा, तो वो चेंज हो जाएंगे, उसी की वैल्यूज आप पुट कर ले तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 7। नाउ setting the coefficient of various powers of y equal to 0, यानी पावर k equal to 0, 1 2 3 up to k मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए, that is when k equal to 0 y power minus 2 and you will have a not equal to 0, and when y power minus 1 you will have a 1 equal to 0 and so on. So for y power k you will have k plus 2 into k plus 1 into k plus 2 minus 2। ये वही प्रोबेबिलिटी मेथड जो आप लोग कर चुके हैं वही रिपीटेड है। मैं दोबारा बता दूं, आपने एमएमपी में इसको ऑलरेडी किया हुआ था प्रीवियस में। सो द लास्ट टर्म इज बिकॉज पुट k इक्वल टू k plus 2 इन फर्स्ट टर्म आप इक्वेशन 7 वी गेट। जब आप इसको पुट कर लेते हैं तो आपके पास जो जनरल के वाली इक्वेशन है वो यही आता है। ये मैंने इस वजह से लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। Okay, now if we have an infinite series and we add or subtract some small numbers, then it does not change this series। ये हम जानते हैं कि अगर आपके पास infinite series है, so series बहुत बड़ा होता है और कुछ माइनर टर्म्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसी क्वेश्चन 7 को हम क्या करते हैं, इसी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं और जो कोएफिशिएंट है हमारे पास a k plus 2 इसको ले लेते हैं। तो ये वाला टर्म आप दूसरी साइड पे लेके जाएं, a पावर k के साथ, ये 2k माइनस एप्सिलॉन माइनस 1, ये टर्म ये ऊपर लिखा हुआ है, और फिर जो a के साथ ये टर्म प्रोडक्ट में है तो ये नीचे आ जाएंगे k plus 1 into k plus 2। सो इक्वेशन 8 आपके पास आ गया, एंड दिस इज नोन एज द रिकरेंस रिलेशन फॉर द हर्मिट पॉलिनोमियल्स। अब इसी से आप जो है तमाम कोएफिशिएंट मालूम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर k मैक्सिमम इक्वल टू n, यानी k की मैक्सिमम वैल्यू n ही हो सकती है। हमने 0 से स्टार्ट लिया था k के लिए और अप टू सो ऑन 1 2 3 4 5 जा सकते हैं, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू n होगी। और फिर हमारे पास an जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि an की वैल्यू जो है मैक्सिमम वो यही है, जबकि an प्लस 2 0 के बराबर हो सकता है इस इक्वेशन के मुताबिक, अगर हम 0 वैल्यू उसमें k की जगह पे पुट कर ले। तो जब हमने ये वैल्यूज दिए तो इक्वेशन 8 हमारे पास n टर्म में आ जाएगा, an प्लस 2 इक्वल टू 2n माइनस एप्सिलॉन माइनस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2 इंटू an इक्वल टू 0, एंड देन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। यानी जब आप an प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्योंकि an 0 नहीं हो सकता, तो ये कोएफिशिएंट जो है 2n माइनस इंटू एप्सिलॉन माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब आप इसको 0 के बराबर कर ले तो ये नीचे वाला टर्म दूसरी तरफ साइड पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब n हमने 0 नहीं लिया, वो 0 नहीं है, सो 2n माइनस इंटू एप्सिलॉन माइनस 1 है, तो इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर ले। सो आप एप्सिलॉन की वैल्यू जब इससे निकालेंगे तो यू विल गेट 2n प्लस 1। ये इक्वेशन सी है। इसी वैल्यूज को आपने अब इस्तेमाल करना है। वो जो पहला हमारा कंसिडरेशन था जिसमें हमने एप्सिलॉन डायमेंशनलेस क्वांटिटी ली थी, एंड दैट वाज इक्वल टू 2e डिवाइड बाय स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे 2n प्लस 1 आ गई, तो इन दोनों को आप अब बराबर कर सकते हैं। सो यू विल हैव 2e डिवाइड बाय स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 2n प्लस 1, और इसी से आप e की वैल्यू निकाल दें एनर्जी की। सो यू विल हैव 2n प्लस 1 इंटू h स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय 2, और अगर आप ये 2 इनसाइड ले जाए तो 2n बाई 2 plus 1 by 2, so 2 to cancel, you will get n plus 1 by 2 into h cut by omega, or we can say en equal to n plus half into h cut by h cut omega। so h cut omega into n plus half, ये वही वैल्यू थी जो कि हमने वहां पे भी हासिल की थी, and we call this that this is the energy eigen value for n equal to 0 1 2 3 up to so on। अब अक्सर पेपर में ये भी आ जाता है कि show that the ground state energy for harmonic oscillator is half h cut omega।
ओमेगा नॉट पर आ जाता है। तो वो एन की वैल्यू जब आप 0 पुट कर ले तो ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगा ई नॉट, और यहाँ पे n0 तो ये हाफ एच कट ओमेगा नॉट आपके पास रह जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन गेट दैट वैल्यू फ्रॉम हियर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वेव फंक्शन पर हार्मोनिक ऑसिलेटर। जिस तरह हमने वहां पे किया था, यहाँ पे हार्मोनिक पॉलिनोमियल को इस्तेमाल करके हम दोबारा उसके लिए वेव फंक्शन, ये एनर्जी की वैल्यू तो मालूम हो गई, अब हम देखते हैं कि हम इससे वेव फंक्शन मालूम कर सकते हैं कि नहीं। वही हैमिल्टोनियन एच की वैल्यू हमने ली, उसी तरह अब क्या करते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू 0 इसमें पुट कर लेते हैं। तो जब आपके पास ये सीरीज आ जाएगा ए के इंटू वाई पावर के, सो ये अब वेरी सिंपल है, जब आप के की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे यू विल हैव ओनली ए नॉट। जब आप 1 पुट करेंगे तो a1 y1 देन a2 y2 एंड, और ये चूंकि समेशन के साथ है तो ये सीरीज है हमारे पास। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। द इवन और आर्ट सॉल्यूशन विल बी, अब इसमें आप आर्ट और इवन को अलग कर सकते हैं, यानी एच नॉट और एच वन, ये चूंकि आर्ट इवन की बात है, सो एच नॉट जो है वो इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर एंड सो। इसी तरह एच वन जो है वो आर्ट को ए वन ए थ्री ए फाइव, तो हमने यहाँ पे ईड सॉरी आर्ट और इवन जो है वो कर दिए। रेशो ऑफ consecutive terms of either of two series is, यानी what we do now, वो जो रेशो हमने पहले ऊपर निकाली थी ए के प्लस टू की वैल्यू और ए के की वैल्यू, यानी उसी वैल्यू से वो जो इक्वेशन था आपके पास, यानी दिस वन यहाँ पे n के फॉर्म में है लेकिन ऊपर यही इक्वेशन आपके पास के ये वाला, तो दोनों साइड को आप ए के पे डिवाइड कर ले, सो यू विल हैव ए के प्लस टू डिवाइड बाय ए के, और यहाँ पे सिर्फ ये टर्म रह जाएगा इक्वेशन 8 से। तो ये इक्वेशन 9 जो है उसको हमने इस्तेमाल किया और हमने इसको रेशो के फॉर्म में लिख दिया, इस इक्वेशन 9 को, दिस वन। सो व्हाट वी डू नाउ, एंड वी हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स सच दैट, क्योंकि सीरीज है तो व्हाट वी डू, हम व्हेन k टेंड्स टू इंफिनिटी देन a k प्लस टू डिवाइड बाय a k विल बी इक्वल टू, यानी इसका हम लिमिटिंग केस ले लेते हैं कि k टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट ऑफ k टेंड्स टू इंफिनिटी और यही वैल्यूज। सो जब आप ये वैल्यू लेते हैं और लिमिट आप k टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हमने k कॉमन ले लिया, ऊपर भी ले लिया और यहाँ पे तो वो कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ ये वाला, और ये टर्म 1 इंटू वन बाई के, सो 1 बाई इंफिनिटी, तो 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी यू विल गेट 0। यहाँ पे सीधा k प्लस 2 है आपके पास, तो k की जब वैल्यू आप इंफिनिटी पुट करेंगे तो नीचे आपके पास इंफिनिटी आ जाएगी, तो समथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी यू विल गेट 0 वैल्यू। सो यहाँ पे जो रेशो है वो 0 के बराबर है। दिस रेशो अप्रोचेस 0 एंड सीरीज h naught psi and h1 sorry h naught y and h naught y and h1y are convergent and define analytic function which can be which can have the solution. So what we do, however, if k is very greater than 1, that is k is very greater than epsilon, जब आप ये सब पोजीशन इसमें पुट कर लेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये पूरा टर्म आपके पास जो है ये 2k माइनस इंटू एप्सिलॉन माइनस 1 ये 2k के बराबर है। तो जब आप सिर्फ 2k डिवाइड बाई के 1 प्लस के 2 यानी आपके पास ये रह जाएंगे, और फिर इसी से जब आप k कॉमन ले लें तो वो k के कैंसिल, यानी क्योंकि यहाँ पे आपके पास k स्क्वायर है एंड यू आर लेफ्ट ओनली विद 2y स्क्वायर डिवाइड बाई k प्लस 1 k प्लस 2k, क्योंकि k हमने लार्ज टर्म ले लिए। सो द रेशो जो है 2y बाई k, नाउ वी कंसिडर अनदर सीरीज विच इज, उसी तरह के एनालॉजी के लिए हम एक और सीरीज कंसिडर करते हैं, e पावर y पावर स्क्वायर है, दैट इज e y स्क्वायर। तो इसी को हम एक सीरीज बना के उसी तरह लिख लेते हैं इसी टर्म में, और जो रेशो है उसके कंसेक्टिव टर्म का वो भी हम ले लेते हैं जिस तरह हमने ऊपर लिया, यानी इसकी एक्सपेंशन ले लेते हैं e पावर y स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये जो अगर आपको याद हो e पावर x बराबर होता है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये आड और इवन टर्म के उसमें, तो इसी को भी खोल दिया गया है उसी तरह। और जब y की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा हो तो आपके पास सिर्फ ये a के y पावर k रह जाएगा, क्योंकि जो टर्मिनेशन है उसकी जरूरत नहीं है। सो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं कि समेशन आपके स्टार्ट फ्रॉम 0 a k इंटू वाई के इज इक्वल टू e पावर y स्क्वायर। यही सब्स्टिट्यूशन हम करके हमारे पास जो वैल्यू लिखा था
पाई अप वाई इक्वल टू ई पावर वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू एच साई। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एच साई की वैल्यू जो है वो ई पावर वाई स्क्वायर पुट कर लेते हैं। सो ई पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू ई पावर वाई स्क्वायर है, इन दोनों को आप ऐड कर ले, you will get e power y square by 2. And for large value of y, it is divergent. Therefore, it cannot be the solution. वही equation फिर हमारे पास आई जो कि solution नहीं हो सकती. So, if a k equal to 0, all the successor also give 0, and since the corresponding function hy is a polynomial, this means that even our odd parity solution h naught y or h1 y must cut up somewhere, and thus the wave function will be psi of x equal to pi of y h psi into e power y square by 2, or we can say that psi of x equal to h into alpha x e power minus alpha x square। ये वही y की वैल्यू हमने दोबारा पुट की, y was equal to alpha x, तो हमने वही वैल्यू पुट की और इसको इसी फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी psi of n of x h n of h of n into e power minus alpha square x square divided by 2, and this gives the unnormalized equation eigenwave function पर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इसको आप नॉर्मलाइज कर ले, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको एच एन यानी जो हर्मिट पॉलिनोमियल्स है उसका आपने मालूम करना है, और उसके लिए जो सॉल्यूशन है आपने डायरेक्टली हर्मिट पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था वो आप लिख सकते हैं। इन्होंने डायरेक्टली उसी सॉल्यूशन को इस्तेमाल करके इसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म लिखी हुई है, और एन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसने साई आप जीरो यानी साई आप एन की जब आप जीरो पुट कर ले, अल्फा बाई पाई इंटू होल पावर 1/2 इंटू ई पावर दिस, जो कि ग्राउंड स्टेट में फंक्शन है। इसी तरह आप दूसरे के लिए मालूम कर सकते हैं, साई आप 1, साई आप 2, साई आप 3 एंड सो ऑन। तो ये हर्मिट पॉलिनोमियल्स की डायरेक्ट वैल्यू है जो कि आपने एमएमपी में निकाली थी। हाँ अच्छा, अब वो तो हो गया जी, हमने जो डिफरेंशियल मेथड था उसी से हमने फंक्शन भी मालूम किया, और उसी से हमने एनर्जी आइगन वैल्यू भी मालूम की। अब हमारे पास है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो कि हम x और x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम कर ले हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ये अक्सर प्रॉब्लम आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन की तरफ में आ गया जो कि ताशफीन ने क्वेश्चन किया, सर हाउ द डबल डिफरेंशियल इज टेकन। इट्स वेरी सिंपल, जो आपके पास साई है आपने कर सकते हैं। मैंने इस पेज पे वर्ड बाय वर्ड उसको एक्सप्लेन किया है और साल क्या है। अब तुम देख लो इसको, जब अगर तुम्हें फिर भी समझ नहीं आई खुद से कर लो इसको, फिर भी समझ नहीं आई तो लेट मी नो, मैं फिर दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो अब हम आते हैं फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर पर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अब इसके लिए जब हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम करने हैं, इसके लिए हम जो ऑपरेटर मेथड है हमारे पास वो आसान है, क्योंकि उसमें हमारे पास सिंपल वैल्यूज है ए और ए डिगर की, और उसी को हम इस्तेमाल करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने ए और ए डिगर की वही वैल्यू ले ली, फिर उसका इनवर्स यानी उससे हमने एक्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने उससे निकाल सकते हैं। तो जब उसका इनवर्स हम ले लेते हैं एक्स की, वो है 1/√2 बीटा इंटू ए डिगर प्लस ए। नाउ इट्स वेरी इजी, ब्रायन किट नोटेशन में हमने इसको लिख लिया कि जो एक्सपेक्टेशन है एक्स का वो बराबर होता है आपके पास, यानी साई आप एन की जगह पे हम डायरेक्टली एन लिख लेते हैं। जो साई आप एन होता है ना, तो उसकी साई की बजाय हम सिर्फ एन लिख लेते हैं, यानी इसका मतलब है साई आप एन। और यहाँ पे आपके पास एक्स ऑपरेटर की वैल्यू है, और ये जो दूसरा है आपके पास वो फिर साई आप एन। तो ब्रा और किट नोटेशन हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, आप लोगों को इसका पता है कि हाउ वी कैन राइट जो इंटीग्रल फॉर्म में हम किसी साई साई स्टेरिक डी डीटा की वैल्यू को फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लिख लेते हैं, उसको हम डायरेक्टली ब्रा और किट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो तो वहां पे साई एक्स इंटू साई स्टार डीटा होल इंटीग्रल माइनस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। सो जब हमने इसको लिखा तो एक्स एक्सपेक्टेशन की ये वैल्यू 1 ओवर जो इक्वेशन 3 में है 1/√2 बीटा इंटू ए प्लस ए डिगर, इसी को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया है,
ये जो कांस्टेंट है वो तो बाहर चला जाएगा और ए डिगर आपके पास रहता है। तो अब इस पे अलग अलग जो है ये अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि प्लस साइन है। ये हमने डिराक नोटेशन में प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि जब प्लस होगा तो हम किस तरह अप्लाई करेंगे। सो वी विल हैव एन ए इंटू एन, और इसी तरह एन ए डिगर इंटू एन। अगर आपको याद हो हमने इसकी वैल्यू भी निकाली थी कि जब साई आप इन यानी ए ऑपरेट करेगा साई आप एन पे, तो आपके पास आएगी वैल्यू एन एन माइनस वन, और जब ए डिगर ऑपरेट करेगा तो आपके पास वैल्यू आएगी एन प्लस वन। तो वही वैल्यू हमने इसमें दोबारा पुट की, यानी जो ब्रा एन है आपके पास, सॉरी किट एन है, और जो ब्रा एन है वो ब्रा एन चेंज हो जाएगा अप टू एन माइनस वन। यानी जब ये टर्म इस पे ऑपरेट करेगा ना, यानी ए ऑपरेट्स ऑन एन, सो यू गॉट एन माइनस वन। और इसी तरह जब ये ए डिगर ऑपरेट करेगा तो आपके पास ये दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके। और फिर साई आप एन एंड साई आप एन माइनस वन यानी स्टेरिक है। तो ये यहाँ पे चूंकि आपको याद है जब हमारे पास दोनों वैल्यू सेम ना हो तो फिर हम क्रॉनिकल डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। क्रॉनिकल डेल्टा जो था वो उसकी कंडीशन होती है। अब यहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा एन इंटू एन माइनस वन है। अगर एन इक्वल टू एन माइनस वन ना हो तो आपको जीरो वैल्यू मिलेगी, या एन और एन प्लस वन के बराबर ना हो तो आपको जीरो वैल्यू मिलेगी। तो ये क्रॉनिकल डेल्टा की खासियत है, और हम ये लिख लेते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे एन इंटू एन माइनस वन ये बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये टर्म जीरो हो जाएगा। इसी तरह एन इंटू एन प्लस वन है तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी जीरो। तो जीरो प्लस जीरो लाजमी बात है, जो एक्सपेक्टेशन है एक्स की वो जीरो आ जाती है। इसी तरह एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन हम मालूम करते हैं। सेम वही टर्म है, लेकिन यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक्स की जगह पे। तो वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप इससे लिख ले, यानी एक्स की जो ये इक्वेशन 3 में वैल्यू है इसको आप स्क्वायर कर ले, फिर उसी स्क्वायर को आपने खोलना है, यानी यू विल गेट 1/2 बीटा स्क्वायर। ये अंडर रूट टू था तो ये टू हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और बीटा स्क्वायर ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। और ए प्लस ए डिगर होल स्क्वायर जो है आप इसको खोल दे, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, एंड ओपन इट, तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे ए डिगर स्क्वायर ये दोनों टर्म जो है इसकी उसी तरह जिस तरह आपने एक्स के लिए मालूम किया, ये चूंकि वही ऑपरेटर्स है जिस तरह ऊपर आपने सॉल्व किया, यहाँ पे एन ये डबल हो जाएगा, लेकिन एन और एन प्लस टू और एन प्लस वन। तो ये तो लाजमी बात है, आपको जो जिस तरह ऊपर आपको जीरो वैल्यू मिली इससे जीरो वैल्यू आएगी। तो इस वजह से ये दो टर्म हम नहीं लेते। जो रिमेनिंग टर्म है ए इंटू ए डिगर प्लस ए डिगर इंटू ए, इसको ले लेते हैं, और इसमें फिर हमने सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ए इंटू ए डिगर और ए डिगर ए ये दोनों एक दूसरे जी माइक ऑन किया। शफात अहमद जी। सर जो हम इस वीडियो लेते हैं एडिगर कि वो कह रहे हैं कि ये पैरेलल है, इसका क्या मतलब है कि वो हम जीरो लेते हैं, पैरेलल का क्या मतलब है यहाँ पे जो इससे लिखा है? नहीं बेटा, मैं आपकी क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका? सर एडिगर क्लियर हम लेते हैं कि जीरो यहाँ पे लिखा है इसके साथ है एक पैरेलल वेक्टर है, इसकी वजह से हम जीरो लेते हैं। हाँ, तो इसका पैरेलल का क्या मतलब है सर? ओहो, इट्स वेरी सिंपल। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं पैरेलल वेक्टर्स का तो क्या होता है? हेलो, सर यहाँ पे इसमें डॉट है या इसकी वजह से हम नहीं है। एक मिनट क्यों नहीं है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वेक्टर ए हो और उस वेक्टर का आप स्क्वायर कर ले, कैपिटल ए वेक्टर है और उसका आप स्क्वायर कर ले, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या तो समझ लो कि डॉट पैरेलल यहाँ तक में तो लाजमी बात है ना, वो तो आ गया तो पैरेलल वेक्टर्स हो गए। या अच्छा, यानी सेम वेक्टर है ना, उसका स्क्वायर आ गया है यस सर। तो वो पैरेलल वेक्टर है। लेकिन अगर आप पैरेलल वेक्टर ना लेने, आप ये कंडीशन अप्लाई कर ले, यहाँ पे देख ले 1/√2 बीटा इंटू ये जो है हमारे पास यानी √n आपने इसे कॉमन लिया, यहाँ पे आप देख ले एन साई आप n माइनस वन। तो ये दोनों दूसरे से डिफरेंट है। ये आपके पास ए डिगर से आया था। अगर आप स्क्वायर कर ले इसको और इसकी वैल्यू निकाले तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो जाएगा।
ए स्क्वायर से भी आपके पास ये वैल्यू n-2 या n+2 यहां पे आ जाएगी। तो इसी से भी आपके पास कैनोनिकल डेल्टा से ये 0 होगा। ओके सर। बात समझ आ गई? यस सर। ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं, जब ये दो टर्म एक दूसरे से डिफरेंट है, ए और ए डिगर प्लस ए डिगर इंटू ए, तो हम इनको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि सिमिलर कर ले। हमारे पास एक कंडीशन थी, अगर आपको याद हो, बल्कि ये आपका एक प्रॉब्लम है, मैंने कहा था कि इसको आप कर ले। सो डू दिस प्रॉब्लम इज दैट ए इंटू ए डिगर विद स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 1, यानी ये दोनों कम्यूट नहीं करते और आप इसको प्रूव करें। तो अगर ये 1 के बराबर है, और इसको हम यानी a इंटू बी को लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए इंटू ए डिगर माइनस ए डिगर इंटू ए, ये 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर है तो इसको रीअरेंज कर ले। रीअरेंजिंग से आप इसकी वैल्यू निकाल कर यहां पे ले आकर के पुट कर ले, यानी ए डिगर ए अपनी जगह पे आ गया, ये वाला ए इंटू ए डिगर की जगह पे आपने वैल्यू पुट किया है, सॉरी ए यानी दिस a इंटू ए डिगर माइनस ए डिगर a इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं माइनस ए डिगर a को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो a इंटू ए डिगर इज इक्वल टू 1 प्लस ए डिगर a, और इसी को यहां पे मैंने पुट किया 1 प्लस ए डिगर a। अब ये ए डिगर a और ए डिगर a ये दोनों सेम हो गए, तो ये 2 हो जाएगा, 2 ए डिगर a प्लस 1। 2 तो कांस्टेंट है, आप उसको निकाल सकते हैं, और ए डिगर ए अगर आपको याद हो, ये हमने कैपिटल एन के बराबर लिया था इन ऑपरेटर, और इन ऑपरेटर जब ऑपरेट कर जाता था वहां पे तो वो स्मॉल एन के बराबर निकल आया था। सो ये 2n+1 आ गया। अब 2n+1 आपके पास जो है वो तो एक वैल्यू है आपके पास, तो आप इसको निकाल सकते हैं बाहर। सो आपके पास 2n+1, या इन्होंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया हुआ है, 2 को कॉमन लिया है तो n+12 आ गया इधर, और यहाँ पे 1 ओवर 2 बीटा स्क्वायर खुद ब खुद आ रहा था, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो 1 ओवर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे जो है आपके पास n+12 इंटू n यानी साई ऑफ n और साई ऑफ n स्टेरिक है, तो ये तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है जो कि 1 के बराबर होती है। सो दिस इज इक्वल टू 1। जब ये 1 के बराबर हुआ, यहाँ पे आपके पास आ गया 1 ओवर बीटा स्क्वायर इंटू n+12, या 1 ओवर बीटा स्क्वायर बराबर था m ओमेगा नॉट बाय h कट। सो वही वैल्यू m ओमेगा नॉट बाय h कट, जब आप इसको उल्टा कर ले 1 ओवर बीटा स्क्वायर है तो ये h कट ऊपर चला जाएगा, ओमेगा नॉट नीचे आ जाएगा। सो एक्सपेक्टेशन आप x स्क्वायर जो है वो बराबर है h ओवर m ओमेगा नॉट इंटू n+1, सॉरी n+12। अब यहां से आप देख सकते हैं कि जो x एक्सपेक्टेशन है वो 0 आ रही है, लेकिन जो x स्क्वायर है वो आपके पास एक वैल्यू आ रही है। सो वही ऑपरेटर को इस्तेमाल करके हमने x और x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। नाउ उसी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके मोमेंटम p और मोमेंटम p स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। सो सिमिलर मेथड है ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है स्टेप बाय स्टेप। अब मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करता, आपने खुद करना है, एंड यू विल गेट दैट p एक्सपेक्टेशन इज 0, जबकि p स्क्वायर के लिए उसी तरह आप सॉल्व कर ले, सेम मेथड है। व्हेन यू डू सॉल्व इट यू विल गेट, यहां पे आपके पास वैल्यू p स्क्वायर के लिए आ रही है h m ओमेगा नॉट इंटू n+12, वहां पे थी आपके पास h कट बाय m ओमेगा नॉट, और यहाँ पे h m ओमेगा नॉट n+12, तो ये आपके पास आ गई p स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन। इसी तरह टोटल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन आप मालूम कर सकते हैं। टोटल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल की होगी, काइनेटिक p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, p स्क्वायर ऑलरेडी आप लोगों ने निकाली है, और यहाँ पे k/2 x स्क्वायर भी आप लोगों ने ऑलरेडी निकाली है। वो दोनों वैल्यूज आप पुट कर ले इसमें, तो जब आप दोनों पुट कर लेते हैं तो h कट m ओमेगा नॉट ये p स्क्वायर की वैल्यू है, और यहाँ पे ये x स्क्वायर की वैल्यू है। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर ले, जो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट इज h कट ओमेगा नॉट इंटू n+12। ये वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, वही एनर्जी आइगन वैल्यू है जो ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हैं ऊपर। तो यानी आप यहां से जब आप x स्क्वायर p और p स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन मालूम कर ले, तो आप इसी से डायरेक्टली एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी एनर्जी आइगन वैल्यू एक्सपेक्टेड जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। और अगर आपने देखा हो वो जो हमने हर लेवल की एनर्जी डिस्कस की थी, तो जो कॉमन फैक्टर था वो यही था h कट ओमेगा नॉट इंटू n+12, फिर इसके साथ आप 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी आप ऐड करते जाएं तो आपको वो जो हर एनर्जी लेवल आपकी वैल्यू आई है वो आप इससे निकाल सकते हैं।
इसी तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने ये खुद करना है कि प्रूव दैट a इंटू ए डिगर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू ए, यानी इट डज नॉट कम्यूट, इसको आपने प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या हुआ है कि आप ए और ए डिगर की जो ऑपरेटर वैल्यू है वो आप ले लें, ये दोनों इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इसमें पुट कर लें। ये मैंने यहाँ पे डाल दी है, यानी पहले इसको आप इसी फॉर्म में लिख दे, ए इंटू ए डिगर माइनस ए डिगर इंटू ए, फिर ए और ए डिगर की वैल्यू एंड देन ए डिगर ए की वैल्यू, और हर एक के साथ साई, यानी साई दोनों के साथ है, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। तो ये आ चुकी है, ये देखिए, ये ए डिगर सॉरी ए और ए डिगर की वैल्यू है, और ये ए डिगर और ये ए की वैल्यू है। सो जी, किसी ने माइक ऑन किया? अच्छा नहीं, ओके। तो जब आप इसको अब इसको प्रोडक्ट है, ये सिंपल प्रोडक्ट है, इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स विद एक्स, देन एक्स विद दिस एंड देन दिस विद दिस एंड दिस, इसी तरह ये वाला, ये तमाम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर आपने मोमेंटम की जो ऑपरेटर वैल्यू है वो पुट करनी है। मोमेंटम की ऑपरेटर वैल्यू बराबर है एच कट बाय आयोटा इंटू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। तो वो वैल्यू हर जगह पे आप पुट कर ले। जब आप पुट कर लेते हैं और फिर इसको टर्म वाइज सिंप्लीफाई किया है मैंने, जब आप टर्म वाइज सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप वाइज, देन यू विल गेट m omega naught over h cut into h cut by m omega naught into psi, m omega naught m omega naught h cut ये कैंसल, एंड यहाँ पे आपके पास सिर्फ psi आ गया। अब इस psi का कोफिशिएंट भी y है और इसका कोफिशिएंट तो यही था, सो वी प्रूव्ड दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, नाउ दिस इज होम असाइनमेंट, ये आप लोगों ने करना है। ये मैंने किया a इंटू ए डिगर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने करना है ए डिगर ए, ये किसके बराबर है, ठीक है, ये आपने खुद करना है। ये तो मैंने किया कि ये 1 के बराबर है और इसको प्रूव भी किया। नाउ यूजिंग द सिमिलर मेथड, सिर्फ इसमें ये टर्म जो है ये उल्टा हो जाएंगे और फिर आपने पूरा तरीका करना है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ वेरिफिकेशन। अगर आप इसकी वैल्यू निकाल दे तो ये आपकी वेरीफाई हो जाएगा, जो मैंने किया ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि आप इसको सीख चुके हैं एंड यू हैव लर्नड इट एंड यू कैन डू इट। सो डू इट बाय योरसेल्फ। आज ही आपने इसको पढ़ना है और आज ही आपने इसको दोबारा करना है। जब आप इसको कर लोगे तो कल जब मैं क्लास दूंगा, आपने मुझे हर एक ने मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारा खत्म हो गया, उसके तमाम हो गए। इसके रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है आप लोगों ने थोड़े से जाके पेपर में चेक करने हैं, ताकि कोई इशू ना हो आपको आगे सॉल्व करने में, फिर पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में कोई मसला ना हो और आप इसको कर सकेंगे। अभी तो मेरा इरादा ये था कि मैं 2 बजे तक क्लास लेके एक और टॉपिक भी करूंगा, लेकिन चूंकि आज पहला दिन है आप लोगों का मेरे क्लास में, तो इस वजह से मैं इसी पे ख़त्म कर लेता हूँ। इसके मुताबिक यू डिड विल सर, ओके थैंक यू। ये है सोशल चैनल। अब सोशल चैनल किसका आइडिया है मुझे आई डोंट नो, ये जो पर्सनल आईडीज है उसके डिफरेंट नाम है आप लोगों के, तो इससे पता नहीं चलता। ओके दैट्स गुड, जो भी है डजेंट मैटर, लेकिन थैंक यू। जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो गई, मैं आप लोगों को ईमेल पे भेज भी दूंगा। सॉरी, बल्कि मैं इसको सिंपली ये करता हूँ कि अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करता जाऊंगा, तो वहां से आप लोग देख लिया करें। दोबारा दोबारा आप देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो आज मैंने काम किया आज ही आप 3-4 घंटे इसको दे दें, इसको आज ही पढ़ लें। बुक लाजिमी पढ़ लें, ये लिबाब बुक मैंने फॉलो किया है, कंप्लीटली उसी से किया है। वही बुक आपने पढ़ना है इसके साथ, उसी बुक से आप दोबारा करें। फिर भी अगर ये क्या है सर, पेजेस पेजेस तो मैंने बेटा ईमेल किए हुए हैं आपको। अगर ईमेल नहीं मिला सो इट्स मीन कि आपका ईमेल या गलत था या लिस्ट में नहीं था। मुझे 4 ईमेल जो है वो बाउंस हुए थे, उसमें एक ईमेल था वो तशफीन का था, तो वो तो मैंने करेक्ट किया। 3 ईमेल थे जो कि डिफरेंट नाम पे थे। एक था मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में वो ईमेल आप लोग के साथ शेयर की हुई है। अगर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर ले, जो ग्रुप है उसमें 3 मैंने लिखे हैं कि ये तीनों ईमेल जो है ये गलत है, इसका ईमेल मुझे बाउंस बैक हो रहा है। तो या तो वो ईमेल आप टिक करके मुझे भेज दें,
और या जो जो जिसका ईमेल अभी मेरे पास नहीं है, यानी जो जिसको अभी तक मेरा ईमेल नहीं मिला, जो मैंने लेक्चर भेजे थे उसका, और जो मैंने आज क्लास लिंक भेजी है उसका, तो वो मेहरबानी करे ग्रुप में या मुझे या सीआर को, अगर मेल है तो वो सीआर को, और अगर फीमेल है तो वो जीआर को अपने ईमेल भेज दे सही, और वो मुझे भेज दे कि मैं उसको ऐड कर दूं। अच्छा, इनायत अली का मसला तो ये था। ये जो है जी शेर शासन ने क्या है, थैंक यू मच, थैंक यू सो मच सर, वेलकम इनायत। ओके सर, ताशबीन अख्तर, लेकिन ओपन नहीं हो रहा, क्या ओपन नहीं हो रहा ताशबीन? वो तो पीडीएफ फाइल्स है ना आपके पास, शायद पीडीएफ नहीं होगा। ये पीडीएफ फाइल्स है, पीडीएफ आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। क्यों ओपन नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। आप डाउनलोड कर लो उसको तो ओपन होता है। अच्छा, मैं दोबारा भेज देता हूँ आपको, शायद कोई इशू हो उसमें, मैं बल्कि कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप पे भेज दूँ आपको। लेकिन आप चेक कर ले, वो होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई पूछना चाहता हो? एनीवन जिसका किसी टॉपिक में क्वेश्चन हो, या लेक्चर के हवाले से कोई बताना चाहता हो? सर जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हार्मोनिक फ्लो से हम सॉल्व किया, तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, यानी एक्स रिप्लेस बाई वाई। हाँ बिल्कुल। तो वाई यहाँ पे क्या चीज़ है जो हम इसको शिलांग से लाज लेते हैं, तो शिलांग को निगलेक्ट पोजीशन, करते हैं? पोजीशन है ना, जिस तरह वाई एक्स जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स भी वाई भी एक्स को ही रिप्लेस कर रहा है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होता है ना कि कुछ कांस्टेंट टर्म थे उसके साथ, एम ओमेगा एंड सो, तो वही हमने वाई के डायरेक्ट बराबर ले लिए, ताकि जो अच्छा, इक्वेशन हमारा है वो सिंप्लीफाई हो। ये बैरियर का विथ रिप्रेजेंट करता है, या मतलब क्या चीज़ है इसको? जो एक्स जो है, वाई 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 एक्स को रिप्लेस कर रहा है ना, तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था ग्राफ में? विथ आप पोटेंशियल बैरियर। ये वाई भी उसी को रिप्रेजेंट करेगा ना, यानी अच्छा वाई अच्छा एक्चुअली जो है वो माइनस वाई नॉट और प्लस वाई के दरमियान किसी भी पॉइंट पे आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। देखिए, ये तुम जो वेट की बात कर रहे हो ना, वेट वेट नहीं है वो, वेट से मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेटा। मैं आपको समझा देता हूं, ये जो आप लोगों ने पेंडुलम में देखा होगा कि हमारे मीन पॉइंट से जब हम किसी फासले पे पहुंचते हैं, उसी फासले को हम फिर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी अच्छा एक्स की वैल्यू उसको देते हैं ना, और जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो एक्स नॉट और माइनस एक्स नॉट है। इसी तरह वाई की भी किसी भी पॉइंट पे, ये तमाम वेट में जहां पर भी है, मीन से जो डिस्प्लेसमेंट है ये उसी को शो करता है, इसको हम यस सर, पोजीशन बोलते हैं। ओके सर, समझ आ गई? यस सर। ओके। इनायत अली सर ग्रुप में सेंड करें वो फाइल। अच्छा सबको, अच्छा मैं भेज दूंगा सर। ईमेल से डाउनलोड होने में मसला आ रहा है, सर प्लीज आप पीडीएफ फाइल अच्छा ठीक है, मैं उससे कर देता हूँ दोबारा, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मसला आ रहा है। आई दो कि वो फाइल तो कम थे और वो अपलोड हो गए थे, बट आई डू इट, डजेंट मैटर। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन टॉपिक के हवाले से हो या जनरल हो, पूछ ले शाबाश, ताकि मैं फिर वाइंड अप कर लूँ। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? ओके, सो इट्स मीन के अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। सो मेहरबानी कर ले कि आज इन्हीं टॉपिक्स को दोबारा पढ़ ले, बल्कि स्टार्ट से हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हमने क्लास में पढ़ा था वही, और जो आज जो बाकी हिस्सा पढ़ा उस इन तमाम को दोबारा पढ़ ले, बल्कि ये दोबारा खुद से ये मैथमेटिक्स कर ले, और साथ में बुक्स जो है वो दोनों ग्रिपत और लिबाप उसके साथ पढ़ ले। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन या कोई इशू हो, तो कल के क्लास शुरू होने से पहले मुझे बता दे, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। इसके दरमियान में भी कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू ऑल।